Hello, sir. Yes, Sridhar. Sir, I had one doubt regarding the box plot and the quantile plot, sir. Box and quantile plot. Okay. Here, I'm talking about Diamond's dataset. I will not do anything in your car's dataset. You know, that is Yes, your sir. project. You will submit it. No, sir. Diamonds. Yes, sir. Uh, Diamonds data set. I will show you with some dummy dataset, whatsoever needed to be done. So we have done box plot. Here it is. Yes, And sir. Sir, in this, sir, we have the outliers from 2 to 5, sir. There are so many points which shows there are outliers from 2 to 5. correct. But once we do the quantile plot, there are no points from 2 to 5, sir. Well, Like here, it shows so many points are there between 3, 4, and then 5. But once we do the quantile plot, there's only 1 point in 5 and nothing after 2.1. uh, it is because outlier is see quantile plot. We are plotting percentile. We are not plotting all 50,000 points. You see how many data points are there? This diamond Yes, data sir. set has 53,000 rows. यानी कैरेट कॉलम में इसके कैरेट कॉलम में कितनी वैल्यूज आ रही होंगी 50,000 यही ना यही मतलब हुआ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूनिक Yes, sir. वैल्यूज 53,000 वैल्यूज आ रही होंगी अगर आपने बोला बॉक्स प्लॉट जो कि ये था so this box plot is talking about all the possible points हर पॉइंट के लिए वो एक डॉट लगाएगा तो रूटीन रेंज में वो कह रहा है कि बाकी सारी रूटीन रेंज वाले तो इस बॉक्स में आ गए जो उसके बाहर निकल गए हैं उन आउटलायर्स के लिए वो एक एक डॉट दिखाएगा हर पॉइंट के लिए अनलाइक क्वांटाइल प्लॉट में हम ऐसा नहीं देख रहे हैं क्वांटाइल प्लॉट में हम देख रहे हैं परसेंटाइल्स हर परसेंटाइल के लिए एक वैल्यू है यार परसेंटाइल निकाला था ना परसेंटाइल में 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना डेटा को तो ना एक परसेंटाइल डेटा में कितने परसेंट वैल्यू की बात कर रहा है ये 97 परसेंटाइल का मतलब है 96 और 97 के बीच में कितने डेटा पॉइंट्स हैं 1% ऑफ 50,000 हाउ मेनी दे आर आई थिंक 500 तो इसलिए बहुत सारे पॉइंट्स नहीं आएंगे इट विल बी दीज आर 100 पॉइंट्स 0 1 2 3 4 5 6 up to 99 and 100 percentile so they are just 100 points they are not 50,000 points इसलिए एक ही पॉइंट दिखा रहा है वो आउटलायर को रिप्रेजेंटेशन में Okay, okay, sir. Okay. फिर Yes, sir. आई थिंक क्लियर है ये तो लास्ट टाइम बात हुई थी इनफैक्ट दैट इज द वेरी रीजन वी केम ऑन टू क्वांटाइल प्लॉट्स क्योंकि बॉक्स प्लॉट से मैं एकदम से क्लियरली डिसीजन नहीं ले सकता हूँ वो मेरे को बिल्कुल इट इज फोर्सिंग मी टू चेक ईच वन पॉइंट आई कैन नॉट डू दैट प्रैक्टिकली Yes, sir. Yes, sir. Correct. ठीक है अच्छा because Yes, sir. it's okay Vasundhara says it's step by step and getting stuck on univariate analysis ओके यूनिवेरिएट एनालिसिस में अच्छा चलो ठीक है लेट्स लास्ट टाइम तक आप क्या क्या देख चुके थे डायमंड्स वाले डेटा सेट में वी आर क्लीनिंग डायमंड डेटा सेट we took care of format uppercase lowercase duplicates missing values right and not to mention understanding the data first of all then we come to EDA and EDA we started off with univariate analysis let's see my first concern should be univariate one variable at a time देखते हैं I see first variable is caret what do I do with this it is a numeric variable continuous variable yeah I can see range of this
range, and what do we see? It has some range. There are no negative values, no zero values, so seems like invalid values तो नहीं लग रही हैं इसमें. जितनी भी values हैं, they don't seem to be invalid. But one thing, minor thing I noticed, that there is deviation between mean and median. Now I want to look closer. I check the box plot. Box plot shows me several outliers. Now I am not saying that always you should do by box plot. Anyway, box plot is not helping me. But box plot comes in handy for what? If you want to show this box plot to in your PPT, if you want to convey your result that it has outliers somewhere, box plot might help. Otherwise, practically it doesn't help me much. What do I rely on? I rely on quantile plots. I straightforward go to quantiles plot. I check the quantile plot. I see there is a snake on the head of the snake. There is one outlier, leaving it way too far away. So now I need to see what is the value at that. So I check. I'll repeat for once. I think ज़्यादा ही हो गया within a breath. I check the plot. Plot comes out to be this. I look for outliers if there is any. What do I see? There is an outlier. I check the quantile. And what do I see? Up to 99. ये तो मेरे ग्राफ से पता चल रहा है. 0 परसेंटाइल से लेके अप टू 99 परसेंटाइल ये मेरा ग्राफ दिखा रहा है कि ये सब ठीक ही ठाक है. इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. प्रॉब्लम कौन है? 100 परसेंटाइल जो है, दैट इज वे टू फार अवे. इसका मतलब नंबर्स में क्या हुआ? 99 तक ये तो हुआ मेरा रूटीन मैक्सिमम, यहाँ तक सब ठीक चल रहा था. ये बन गया आउटलायर उसके बाद वाले जितने भी थे. ठीक बात है, यही तो कह रहा है ये. बॉक्स प्लॉट से जो वैल्यू मेरे को नहीं मिली थी, पिन पॉइंट वैल्यू नहीं मिली थी, बॉक्स प्लॉट से मुझे ये तो दिखा कि 2 के आसपास आउटलायर, 2 के आसपास रूटीन मैक्सिमम, उसके बाद सब आउटलायर. नाउ आई गेट दैट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू. तो इट इज 2.18. मैं क्या कह रहा हूँ? तो डायमंड के कैरेट विच आर डायमंड कैरेट कहाँ पर? विच आर ग्रेटर देन 2.18, दे शुड बिकम 2.18. रिमेंबर कैपिंग, यही बात हुई थी. मेरा जो रूटीन मैक्सिमम है, आई वांट टू कैप इट हेयर. इसी को कैपिंग बोलते हैं. लास्ट टाइम बात हुई थी ये. क्यों कर रहा हूँ कैपिंग? हटा क्यों नहीं देता इन्हें सबको? शायद बात की थी. ठीक है, चलो आगे. किसी को कुछ नहीं बोलना अभी. ये तक बात हो गई. डेटा थोड़ा सा क्लीन हुआ पहले से. ये बात ध्यान में है ना कि हटाते क्यों नहीं है आउटलायर? हटाना ठीक नहीं है. जिस लाइन में कैरेट आउटलायर है उस लाइन में प्राइस भी है, कट भी है, कलर भी है, क्लैरिटी भी है, टेबल एक्स वाई जी सब कुछ है. तो माना ये डेटा आउटलायर था, लेकिन बाकी इन्फॉर्मेशन भी तो जाएगी अगर इसे हटाऊंगा तो पता लगा 500 आउटलायर निकल रहा है, तुमने हटा दिए. अब तुम कोई और वेरिएबल चेक करोगे, फिर उसमें 500 निकल आए, फिर वो हटा दिए, एंड पता लगा यू एंड अप विद रिमूविंग 10,000 रोज बाय दिस. ओके,
Fantastic. Next is cut, which is categorical variable. कैटेगोरिकल वेरिएबल में क्या करोगे? एक तो ये फैक्टर नहीं होना चाहिए, नहीं तो दुखी करेगा। वो तो हमने पहले ही चलो स्ट्रक्चर ठीक कर लिया था इसका कैरेक्टर में। तो कैटेगोरिकल वेरिएबल में क्या होता है, ये फैक्टर होता और तुम समरी देखते तो क्या देखते इसमें? फ्रीक्वेंसी। अब ये फैक्टर नहीं है, कैरेक्टर है, तो चलो टेबल फंक्शन कर देगा काम, फ्रीक्वेंसी तो देख ही सकते हैं यार। कैटेगोरिकल है तो ना मिन होगा ना मैक्स होगा, ना मीन होगा ना मीडियन होगा, ना इसमें आउटलायर होगा। मेकिंग सेंस? किसी को ये कंफ्यूजन है इसमें आउटलायर नहीं हो सकता? कैन यू थिंक ऑफ इट? तो कैटेगोरिकल वेरिएबल में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं देखने के लिए। मैं क्या देख सकता हूँ, अगर मैं टेबल देखूँ तो कुछ कुछ चीज़ें पता लग जाएगी। क्या क्या पता लग जाएगा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी देख के कुछ समझ आ रहा है? हमारे 50,000 के डेटा में देर आर ओनली 1,500 डायमंड्स विच आर फेयर। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है? प्रीमियम कट। मोस्ट ऑफ आवर डायमंड्स आर प्रीमियम कट और वेरी गुड कट। और कुछ पता चल रहा है? और कुछ पता चलता है यहाँ पे? यू डोंट ट्राई टू कोड। मैं कोड एक साथ भेजूंगा आप लोगों को, अभी ब्रेक में टाइम पे दूंगा, ठीक है? जस्ट स्टे विथ मी, समझते रहना मेरे स्क्रीन से। ठीक है, तो हमने बात की थी कैटेगोरिकल वेरिएबल में केवल मोड हो सकता है। मोड पता चल रहा है इसका आपको? व्हाट इज द मोड इन दिस? प्रीमियम, एक्चुअली आइडियल। यस, आइडियल हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मैं सोच रहा था बोल क्यों नहीं रहा हूँ, गलत बोले जा रहा हूँ सबसे कि प्रीमियम इज मैक्सिमम, वेरी गुड इज मैक्सिमम। ध्यान ही नहीं है। ठीक है, और कुछ पता चल रहा है यहाँ से? मेरे को मोड पता चला, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मेरे को लोएस्ट फ्रीक्वेंसी फेयर पता चला। एनीथिंग एल्स? इट इज गुड टू सी ऑलवेज इन कैटेगोरिकल वेरिएबल, इट मे हैव स्पेलिंग मिस्टेक्स। पता लगा एक जगह वेरी गुड लिखा हुआ है, एक और कैटेगरी बनी हुई है जहां सिर्फ वी गुड लिखा हुआ है, गलत हो जाएगा ना? तो ऐसी चीजें हो जाती हैं कभी कभी। प्रीमियम यहाँ कुछ ऐसे लिखा हुआ है, एक प्रीमियम की गलत स्पेलिंग के साथ एक कैटेगरी और बनी हुई। मे बी समथिंग रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग विद प्रीमियम। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। तो दैट्स व्हाई ऑल्दो इट इज नॉट हियर, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ हमने ठीक कर लिया है। अपर केस लोअर केस मिसमैच नहीं है, स्पेलिंग सारी ऑलरेडी ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं। चलो, नथिंग सस्पिशियस so far।
ऐसे ही आप बाकी भी कर लोगे, कर लोगे। यही कहानी बची कलर के लिए, यही कहानी बची क्लैरिटी के लिए। दोनों कैटेगोरिकल हैं। देन आता है डेथ, अगेन कॉन्टिन्यूअस। आई एम ट्राइंग टू शो यू समथिंग। इफ आई प्लॉट द क्वांटाइल प्लॉट ऑफ डेप्थ, अब मैं बार बार नहीं करके दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? बॉक्स प्लॉट कैसे आता है और क्वांटाइल प्लॉट में कैसे कैसे हम फीड अप करते हैं। मैं सीधे क्वांटाइल प्लॉट निकाल रहा हूँ फॉर ईच परसेंट है, वो जो समझाने के लिए था। एंड व्हाट डू यू सी, इस बार क्या देखते हो? देयर इज आउटलायर ऑन हेड, देयर इज आउटलायर ऑन टेल ऑफ द स्नेक एज वेल। राइट, यू गेट टू सी दैट। लेट्स सी हु आर दे। So this time I am printing the quantile, वही जो प्लॉट में अंदर लिखा हुआ था, जो प्लॉट किया है अभी, उसी वैल्यूज को प्रिंट कराया है, जस्ट नथिंग एल्स, नथिंग इन पर्टिकुलर। given the dictionary where everything, okay, Vasundhara, this was your first interaction with data dictionary। इससे पहले तक मैं बताता था आप लोगों को कि डेटा के बारे में कहाँ से पढ़ लो, कहाँ से जान लो, कुछ नहीं समझ आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ। यू रिमेम्बर क्रिस प्रियम, इन दैट I told you that for data understanding there goes a data dictionary with every each and every data set। तो डेटा डिस्क्रिप्शन आपको ये मिलता रहेगा हर जगह। Now whether it is categorical or not, that many a times it will be provided, many a times you will have to be the judge of that। आपको ये समझा दिया जाएगा कि इस कॉलम में वैल्यूज क्या आ रही हैं। So what do I see after printing? वही जो अभी देखा था, इट इज टेलिंग मी अप टू 99 परसेंटाइल। यार वैल्यू देख के भी पता चल रहा है कैसे चल रही है वैल्यूज। 63.3, 0.4, 0.4, 0.5, 63.8, 64.2, 64.7 and 65। And then what is happening? 65 से suddenly it is 79, almost 80। सडन जंप, वही आपको वहाँ ग्राफ में दिख रहा है। यानी क्या हुआ, ये आउटलायर हुआ। तो 99 तक ठीक थी, 99 परसेंटाइल के बाद आउटलायर आता है। कैसे लिखूंगा उसे कोड में, देख चुके हो। ऐसे तो करूंगा, डायमंड डीएफ का डेप्थ कॉलम वेयर, जहां डायमंड कॉल डीएफ का डेप्थ कॉलम इज ग्रेटर देन 65 शुड बिकम 65। तो ये कहानी ठीक हुई। अच्छा, प्रॉब्लम तो अभी और भी था। प्रॉब्लम क्या था? दिस इज द फर्स्ट केस वी हैव सीन जहां आउटलायर टेल पे भी आ रहा है। यहाँ यहाँ इधर टेल पे ये क्या दिखा रहा है, यहाँ तक तो हमारा रूटीन मिनिमा चल रहा था। देन सडनली वैल्यू ड्रॉप एब्रप्टली। देख लो कैसे ड्रॉप हो रहा है। मिनिमम साइड पे 59.5, 0.3, 59.1, 58.8, 8.4, 57.9 and suddenly it is 57.9 से suddenly 43। कहाँ तो पॉइंट्स में बात हो रही, and then it is dropping in 10, some tens of units। राइट, हाँ जी, इसे कैसे लिखेंगे?
इसे कैसे लिखूंगा? इसे शायद ऐसे लिख दूंगा यार, जैसे यहाँ कह रहा था कि इससे ज़्यादा हो तो यही वैल्यू कर दो। अब क्या बोलूँगा कि इससे कम हो तो यही वैल्यू कर दो। कुछ नहीं करना, यही करना है सेम। यही वाली लाइन कॉपी पेस्ट करके नीचे लिखी, और यहाँ पता, एक तो ये वैल्यू चेंज की है, एक ये साइन चेंज किया है। तुम यही गलत करोगे, ये साइन पलटना भूल जाओगे और तुम क्या बोल दोगे, ग्रेटर देन 57.9 को सब 57.9 कर दो, और उससे क्या होगा, ये सारी वैल्यू जो ग्रेटर देन 57.9 थी ये सारी 57 हो जाएंगी। मजा आ जाएगा। फिर दोबारा चलोगे ऊपर से रीड करते हुए डेटा। चलो देख लेना। So on head also, on tail also, outliers are capped. Capped on head, floored on tail. दोबारा देखो तो इसकी ये डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा लग रहा है। हाँ जी, ऐसा लग रहा है आउटलायर तो अभी भी है। ऐसा देखने सोचने में लग रहा है कि आउटलायर तो अभी भी है। नो प्रसून, यू विल नॉट हैव टू सबमिट, स्टिल इट इज नॉट असाइनमेंट। अभी सारी ट्रिक्स देख लो, उसके बाद मैं बता दूंगा। सो इट मे टेक टुडे एंड टुमारो बोथ द डे। मैं बता दूंगा, आई विल कॉल आउट फॉर असाइनमेंट सबमिशन। यस, बाकी समझ आ गया आउटलायर। अभी देखने में ऐसा लग सकता है कि आउटलायर है, बट यू नो आउटलायर इज डन ओनली इन वन इटरेशन। ये हम बात कर चुके हैं। हेड पे दिखे या टेल पे दिखे या दोनों जगह दिखे, वी सेटल इट फॉर वंस एंड बी डन विद इट। अब दोबारा देखने में लग सकता है कि आउटलायर है। नाउ आई विल नॉट ट्रीट इट, नाउ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज डिसीविंग मी। तो आउटलायर बस पहली बार में थे जो थे, अब दोबारा रिलेटिवली आउटलायर दिख सकते हैं, लेकिन असली आउटलायर जो था वो पहले था, उसके कंपैरिजन में ये आउटलायर नहीं दिख रहे थे। अब वो चला गया तो ये दिखने की कोशिश कर रहे हैं। नो। वैसे एक बात बताओ, कितना प्यारा डिस्ट्रीब्यूशन आया है ना। As if somebody is painting. अब एक काम करोगे जरा, अभी तक जो कुछ भी किया है डायमंड्स डेटा सेट में, here in the chat box, just copy paste. Okay, I think it will be in two sequences. It broke due to typing limit. So, okay, one message is with you, and this is the second part. So just copy paste them one by one.
कैन यू डू फॉर अदर वेरिएबल्स जो मैंने छोड़ दिए हैं? मैं आप लोगों को एक कॉन्टिन्यूअस करके दिखा चुका हूँ, एक कैटेगोरिकल करके दिखा चुका हूँ। जस्ट चेक इट आउट कि इस डेटा में और क्या वेरिएबल्स हैं। डेटा क्लीनिंग का कुछ बाकी पार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यूज वेरिएट जरा कंप्लीट करेंगे आप लोग अपने आप से, वन वेरिएबल एट ए टाइम। यू स्टार्ट ऑफ विद फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड अप टू द लास्ट, एंड ट्राई इट डिपेंडिंग ऑन कॉन्टिन्यूअस और कैटेगोरिकल, जो भी करना है आप लोगों ने। जस्ट गिव इट अ ट्राई, डू इट बाय योरसेल्फ। आई एम होल्डिंग हियर फॉर अ मिनट, and if there is any problem, drop, maybe switch on your mic, speak out, or maybe just drop in the chat box. ठीक है, देखिए करके, प्लीज सिंसियरली देखिए करके। वसुंधरा, टेबल इज जस्ट a technical name for table, basically a data frame. It is also a data frame. The base package data frames operations are a bit slow on base package. When it is table, table पे operations थोड़े से fast हो जाते हैं। Okay, let's not worry about each and every package. There are so many packages. हम वो देखेंगे हमारे काम कौन कौन से आ रहे हैं। अगेन ब्रांच की आईडी, हेडक्वार्टर है कि नहीं है, ऑल इन ऑल वो सारे पैरामीटर्स जो आपने अभी ट्रेन डेटा सेट में देखे हैं, बस एक नहीं होगा। कौन? टेस्ट डेटा सेट में कौन मिसिंग होगा? यस, द टारगेट वेरिएबल। क्यों? बिकॉज दिस इज जस्ट लाइक फ्यूचर डेटा सेट। इस पे तो प्रिडिक्शन मांगा है आपके क्लाइंट ने। आपका बैंक ही आपसे क्या कह रहा है, ये बैंक अगर आपका क्लाइंट है तो ये कह रहा है मेरे पास हिस्टोरिकल डाटा कुछ ऐसा ऐसा है कि पहले जीवन में ऐसा ऐसा होता रहा है हमारे साथ, ये कस्टमर आए थे, उनका ऐसा ऐसे पैरामीटर थे और वो डिफॉल्ट कर गए। अब मेरे को प्रिडिक्ट करके बताओ, बाकी सारा डेटा तुम्हारे पास है जो हम पहले दिन देख सकते हैं कस्टमर का, ये बताओ कि डिफॉल्ट करेगा कि नहीं करेगा फ्यूचर में। दैट काइंड ऑफ एनालॉजी। अब ये क्या कह रहे हैं कि 2017 में ये ब्रांचेस कितना पैसा लेके आएंगी। कुछ ब्रांचेस का हमें पता है, उनकी लोकेशन ऐसी थी, ये था, वो था, सब कुछ था, हिस्टोरिकल ट्रेंड था हमारे पास, 11 में 12 में कितना कितना डिपॉजिट किया है। तो उस बेसिस पे मॉडल बनेगा और इस पे आप प्रेडिक्ट करोगे। ठीक है जी। जब ये आप प्रेडिक्ट कर लोगे, देयर विल कम सैंपल सबमिशन। अब आपका क्लाइंट क्या कह रहा है, उसे सारी कहानी नहीं चाहिए। हाँ, सबमिशन में क्या मांगेगा वो आपसे कि ब्रांच की आईडी बता दो जिस ब्रांच की बात करने वाले हो तुम, और वो अमाउंट बता दो जो तुमने प्रेडिक्ट किया है, बस बात खत्म हुई। और क्या चाहिए? बाकी डेटा तो उसने प्रोवाइड किया है आपको, ये सब डेटा तो क्लाइंट ने भेजा था आपको, ये सब तो उसे नहीं चाहिए। वो कह रहा है ये सब तो मेरे पास है ऑलरेडी, मुझे पता है, मेरी ब्रांच है ना, मुझे पता है इसका हेडक्वार्टर थी कि नहीं थी, लोकेशन क्या थी, एस्टेब्लिश कब हुई है और क्या क्या अमाउंट। वो कह रहा है बस आप मेरे को तो ये बताओ कि कौन सी आईडी के ऊपर आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है, विच ब्रांच आईडी विल डिपॉजिट हाउ मच मनी, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट। वो आपका सबमिशन हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ है, स्केलेंजा पे होस्ट हुई थी ये। चलो खैर वापस आते हैं। ये सब चीजें हो गई। कभी आउटलायर मिला होगा टेल पे, हाइट पे? इट वाज 72 आवर्स सुमित। ये मेरा कोड, मैं भी वही कर रहा हूँ जो आप लोगों ने किया है।
I am looking for quantile, I am plotting quantile, I am removing outliers from head or tail or both. Okay, price was a special one. जब मैंने price पे check किया, I saw a distribution. दिख गया होगा आप लोगों को, जिन लोगों ने कर लिया है. My question is, outlier है क्या? Okay, very fine. Good to hear that. Because usually students do this. नया नया outlier remove करना आता है ना, तो yes, excitement में इसमें से भी हटा देते हैं outlier. इसमें है कहाँ outlier जो हटाओगे? Remember, I said about that outlier is relative. अगर मेरे को कोई unusual jump लग रही है, then it seems like कि हाँ outlier है. But unusual jump कहीं है क्या? कहीं नहीं है. It is just that it is there is an increasing trend and it is getting. It is just that it is getting sharp. तो outlier जैसा कुछ है ही नहीं. तुम लोग खुशी के मारे इसमें से भी हटा देते हो. So good to see nobody did that. हाँ जी शुभम, price is target variable. What about that? Yeah, of course, why not? Check this out, check this out. अच्छा अच्छा देख लो, ठीक है ठीक है ठीक है. किसी और को भी है क्या ये कंफ्यूजन? टारगेट वेरिएबल है तो क्या हुआ, आउटलायर तो हो सकता है ना इसमें भी. यार जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन. ओके देख लो, देखो देखो देखो. मेरे को करना था रिग्रेशन एनालिसिस. एक्स एक्सिस पे कैरेट, वाई एक्सिस पे टारगेट वेरिएबल दैट इज प्राइस. कैरेट इतना, प्राइस इतना, कैरेट इतना, प्राइस इतना, कैरेट इतना, प्राइस इतना, कैरेट इतना, प्राइस, कैरेट इतना, प्राइस, कैरेट इतना, प्राइस, कैरेट, कैरेट इतना, प्राइस इतना, आउटलायर्स. भाई क्या लगता है, कैरेट से प्राइस पे फर्क पड़ता होगा? पड़ता तो होगा. नाउ थिंक अबाउट इट, इस आउटलायर को ना रखें तो लाइन कितनी बढ़िया जाएगी, ऐसी ऐसी चली जाएगी बड़े प्यार से. लेकिन तुमने आउटलायर रख लिया, ये आउटलायर रख लिया, तो ये क्या कराएगा, इस लाइन को डेविएट करा देगा थोड़ा बहुत. देखो ये करा दिया. इस आउटलायर को फिट करने की कोशिश में ये लाइन बाकी सब पॉइंट से डेविएट हो गई. तो हमने कहा आउटलायर ट्रीट कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं. तो तुमने क्या कहा, इस आउटलायर को कैरेट में, कैरेट में क्या कह रहे हो, कैप कर दो. कैप कैसे करोगे, इसको यहाँ से उठा करके रूटीन मैक्सिमम पे ले आओगे. रूटीन मैक्सिमम कैरेट का कहाँ है, यहाँ कहीं, यहाँ कहीं. तो ये आउटलायर आ गया यहाँ. प्राइस में से हटाया नहीं है अभी. कैरेट से हटा दिया, कैरेट से तो कैपिंग कर दी, प्राइस से हटाया नहीं है. हाँ जी, क्या कमाल होने वाला है. अब लाइन कैसे फिट होगी, देख पा रहे हो? देखो वो गई बहुत दूर.
अब के बाद लाइन इधर से चली जाएगी, वो तुम्हारी जो बेस्ट फिट लाइन थी। अगेन सारे पॉइंट मिस कर दिए उसने, बिकॉज कैरेट से ट्रीट कर दिया, प्राइस में तो अभी भी है। आई होप एवरीबडी गॉट द पॉइंट। तो टारगेट वेरिएबल है तो क्या हुआ, आउटलायर होगा तो ट्रीट करेंगे, देखेंगे। ऑल दो है नहीं, आउटलायर है नहीं, वो अलग बात है। नाउ कमिंग ऑन टू अनदर प्रॉब्लम which is in the essence ओके। कैरेट से तो हमने अभी अभी देख लिया, चलो बन जाएगा प्राइस का। कट से वाई एक्सिस पे टारगेट प्राइस, एक्स एक्सिस पे प्रेडिक्टर कट। कट में वैल्यू चल रही है गुड, वेरी गुड, आइडियल, प्रीमियम। तो प्राइस तो वेरी करेगा 0 टू मैक्स समथिंग। कट में 0 से, अब यहाँ वेरी गुड को रखूँ या गुड को रखूँ या आइडियल को रखूँ या प्रीमियम को रखूँ? समझ पा रहे हो क्या दिक्कत आई है? अगर ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता तो 0 टू मैक्स ये भी वेरी कर रहा होता। आइडिया तो यही था हमारा कि 0 टू मैक्स इसे और 0 टू मैक्स इसे दोनों को देख लेते हैं और ट्रेंड देख लेते हैं दोनों में रिलेशनशिप कैसा आ रहा है। अब रिलेशनशिप तो तब देखूं जब मुझे ये पता हो कि इनमें कम कौन सा है, ज़्यादा कौन है। वेरी गुड पहले आएगा या प्रीमियम पहले आएगा, और पहले आएगा तो कितना पहले, इनके बीच में गैप कितना होना चाहिए, वो तो कुछ पता ही नहीं मुझे। समझ पा रहे हो प्रॉब्लम कैटेगोरिकल की? Categorical variable, if there are categories, like if there are color, if there is a categorical variable I have color and it is color में values चल रही है red, blue, green, I don't have any way to tell whether red is greater than blue or blue is greater than red, right? तो मैं उसे ज्योमेट्री पे रखूंगा कैसे? I cannot put this on geometry, एक्सेस पे कैसे रखूं उसको? पहले आने का मतलब है दिस इज लेसर देन नेक्स्ट, ऐसा तो है नहीं, दिस इज नॉट ट्रू इन एनी वे। तो कैटेगोरिकल वेरिएबल को एज सच हम प्लेस नहीं कर सकते ज्योमेट्री पे। कर क्या सकते हैं? किसी ने तो पूछा था मेरे से कि कैटेगोरिकल का करना क्या है। आई टोल्ड देम टू टोल्ड हिम टू, आई थिंक अंकल, आई टोल्ड यू टू लुक फॉर कीवर्ड्स डमी वेरिएबल्स। कैन somebody tell me what is the concept of dummy variable? What's a dummy variable? डमी वेरिएबल वही है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। इट इज अ ट्रिक to fit categorical variable on the geometry। अभी अभी हमने देखा ज्योमेट्री एज सच अलाउ नहीं करती। सपोज आई हैड अ categorical variable color of something and there are values going on red, blue, green and maybe so on. What dummy variable creation is? Dummy variable का मतलब क्या हुआ?
rather than dealing it as such, which is nonsense to geometry, which doesn't make sense to geometry. तो इसमें जितनी भी कैटेगरी आ रही हैं, I will create one column for each category. Like if there are red, blue, green, 3 categories, I will create 3 categories. This one becomes color, for color red. This one becomes for green, and third column will appear for category blue. अब आ जाओ. This was row number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Colors were going like red, blue, green, blue, red, green, green. अगर कलर इस तरह से चल रहे थे, अब क्या होगा? व्हाट इज डमी वेरिएबल? वी हैव क्रिएटेड डमी वेरिएबल फॉर दिस, फॉर ईच वन ऑफ देम. पहली रो कलर वाज रेड, हमने 3 कॉलम में स्प्लिट कर दिया, रेड, ब्लू, ग्रीन. तो इस डमी वेरिएबल में क्या होगा? रेड वन विल बी मार्क्ड 1, बाकी दोनों 0. रो नंबर 1 कलर रेड था, लेकिन कलर अगर रेड लिखा हुआ है मैं उसका कुछ कर नहीं पाऊंगा ज्योमेट्री, तो हमने डमी वेरिएबल बना दिया. डमी वेरिएबल क्या कहता है? जहां रेड कलर था वहां 1, बाकी दोनों 0. जहां कलर ब्लू था वहां ब्लू कॉलम में 1, हाँ, बाकी दोनों 0. इस रो में कलर ग्रीन था, तो रेड 0, ग्रीन 1, ब्लू 0. समझ रहे हो ये कहानी कैसे कैसे होता जा रहा है? जो भी कलर था, हाँ, वहां पर काइंड ऑफ ट्रू फॉल्स नहीं कह रहे हैं, न्यूमेरिक 0 एंड 1 कह रहे हैं. बताता हूँ. जहाँ जो कलर था उस कॉलम में 1 लिख देंगे, बाकी दोनों में 0 भर देंगे. ऐसी फीलिंग हो जाएगी ये कुछ कुछ, आई थिंक. इसको भेजो घर, इसका काम खत्म. इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास आ गई पूरी. थिंक अबाउट इट यार, ये तीनों कॉलम मिलके मुझे वही तो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो ये कॉलम दे रहा था. इसका काम खत्म. सही बात है. फायर में मुझे पता चल रहा है कौन सा कलर आ रहा था. एंड अच्छी बात क्या है? नाउ इट इज ऑल इन 0 1 1 0 0 1. जब ये 0 1 ज्योमेट्री में बैठेगा, जब ये कॉलम रेड या ग्रीन या ब्लू ज्योमेट्री पे आएगा, हाँ, अब मेरे कॉलम को पता होता है, अब तो ज्योमेट्री को मालूम होता है 0 यहाँ होता है, 1 यहाँ कहीं होता है. सॉर्टेड. अब ये तीनों कॉलम ज्योमेट्री पे बैठ सकते हैं. नहीं, इस पर ऐसा डॉट ऑडियो, बट ठीक है, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था वैसे. पढ़ना यहाँ तक क्लियर? नाउ ऑडिबल राइट? ठीक है, वेरी फाइन. आई डोंट नो वेयर डिड आई ड्रॉप ऑडियो. मैं वही बता रहा था कि अब जब ये 0 1 में है, तो नाउ अब तो ज्योमेट्री पे आ सकते हैं यार. इमेजिनरी ज्योमेट्री वो दिखाई तो देगी नहीं आपको, लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन चल रही होगी, जहां भी चल रही होगी. जब भी मेरा एल्गोरिदम ये कर रहा होगा, अब उसे पता है कि 0 यहाँ कहीं आएगा, 1 आगे कहीं आएगा.
तो एक बार रेड कॉलम, एक बार ग्रीन कॉलम, एक बार ब्लू कॉलम, ये सबको एक एक बार वो कर लेगा फिट कहीं ना कहीं। काम तो एन डायमेंशनल ज्योमेट्री में हो रहा है, इमेजिनरी स्पेस में हो रहा है, हम देख नहीं सकते। हमको तो सिर्फ इक्वेशन दिखाई देगी लास्ट में। अरे रिमेम्बर, बात की तो थी ये सारी की सारी। था नहीं का क्लास में उस दिन शुभम? अरे यार वही तो बात कर रहा हूँ, श्रीहरि। आई थिंक श्रीहरि वाज आल्सो एब्सेंट। आई थिंक यू मिस्ड। और किसी को ये कंफ्यूजन है क्या जो लोग उस दिन थे? मैं ये बात कर चुका हूँ मैं सारी। रिमेम्बर जब वो टीवी वाले एग्जाम्पल कर रहे थे कि सारी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी आप लोगों को। PGA R module. Okay, here it is. Here's data, here's data, here's data. Yes. This we are doing to do categorical operation. हमने देखा था कि मेरे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हो सकते हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, यानी एक टारगेट और एक बार में एक प्रेडिक्टर। उससे हमने देखा कि दिक्कत क्या होती है। एक मॉडल को मैं ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया, ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया, मैं सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ उसको। डजंट सीम लाइक अ पावरफुल मॉडल। करके देखा था हमने। फिर हमने सोचा कि अगर मैं सारी ही इन्फॉर्मेशन एक ही मॉडल को दे दूं तो शायद वो मॉडल पावरफुल हो जाएगा। जिस मॉडल को ये भी पता हो, ये भी पता हो, ये भी पता हो, उसे सब कुछ पता है, शायद वो पावरफुल हो जाएगा। लेकिन वो ज्योमेट्री देखने को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? एक्स एक्सिस पे चलो टीवी बजट, वाई एक्सिस पे वो तो टारगेट वेरिएबल होता है। चलो, हाँ जी, कहाँ लेके जाऊँ न्यूज़पेपर बजट को? हमें पता है एक जी एक्सिस होती है। चलो, माना जी एक्सिस पे रख दोगे। और फिर एफ एम बजट, इसे कहाँ ले जाऊँ? ये चौथा, ये कौन है, कहाँ जाए? नहीं जा सकता। वेरिएबल मेरे पास चार हो सकते हैं, वेरिएबल 40 भी हो सकते हैं, वेरिएबल 400 भी हो सकते हैं। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में तीन ही डायमेंशन है। तो तभी हमने ये we established that कि geometry it will work in n dimensional imaginary space and imaginary geometry में काम करेगा which is in n dimensions. I will not be able to see, I will just be able to see what? आपको क्या पता चलेगा? आपको ये पता नहीं चलेगा कि वो ज्योमेट्री कहाँ बनी है। You will just be able to see the equation. ये देखी थी हमने। और हाँ, जब m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, तो नाउ m100 x100 अब ये भी हो सकता है। Algebra is not limited to three dimensional space. Algebraically you can represent as many variables as you want, and so on. And finally the constant. ठीक है? चंगा, कोई कंफ्यूजन? So it's good that you are asking right now and here. So please do that. अगर किसी भी चीज़ को लेकर कोई कंफ्यूजन है लीनियर रिग्रेशन में, कुछ भी मत छोड़ना। प्लीज बी क्रिस्टल हेयर। आगे बहुत सारी मुसीबत बचा लोगे अपनी, अगर लीनियर रिग्रेशन अच्छे से समझ आ गया है तो।
ठीक है, चलो ये बात हुई। ओके, फंडामेंटल समझा। अब ये देखते हैं ये हम एक्चुअली हैंड्स ऑन में क्या करेंगे, कैसा ये काम करना, कैसे है, कैसे करोगे? कैन यू राइट अ लॉजिक टू डू दिस? मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, एसेंशियली इन डायमंड्स डेटा सेट में जहाँ ये कट आ रहा है, ये जो आ रहा है ना कट, आइडियल, प्रीमियम गुड, वेरी गुड, मैं क्या चाहता हूँ, ये कट कॉलम जो है ये स्प्लिट हो जाए और ईच कैटेगरी एक नया कॉलम बने, एक नया वेक्टर बने, और वहां पर जहां ये आइडियल में है, आइडियल लिखा हुआ है, वहां आइडियल तो 1 हो जाए, बाकी सारे 0 हो जाए। समझ गए? इस डेटा सेट में यहाँ पर नए कॉलम आ जाएं, एक आइडियल, एक प्रीमियम, एक गुड, एक वेरी गुड, और क्या क्या हो जाए वहां पर, जहाँ आइडियल है जिस रो में वहाँ आइडियल 1 हो जाए, बाकी सारे 0, जहाँ प्रीमियम है वहाँ प्रीमियम पे 1 आ जाए, बाकी सारे 0। कैसे करोगे? हाँ वही डमी कॉलम बन जाए, तो जरा बना के देखोगे? आई एम जस्ट, हाँ, या वन हॉट कोडिंग कह सकते हो इसको। इट इज नॉट स्टिल वन हॉट कोडिंग, बताऊंगा वो आगे बताऊँ। Still, it is not one hot coding. It means something else. But you can, if only if you are comfortable with that term. So it's 12:15. Let's break for a while. Maybe meanwhile you can think about something. ठीक है जी. So let me leave a note. हाँ जी, कितना टाइम चाहिए इसे करने के लिए? चलो ठीक है, देखो करके. Yep. Is everyone back again? Okay, those who are here, I'm dropping the name. Just install this package. It is called Dummies. Okay, I left you with a question.
किसी से हो पाया? हो पाया तो कैसे किया, जरा बताओगे? हाँ जी, ऐसे भी किया है। जस्ट ड्रॉप मी द कोड। अरे मुझे भी तो करना है, कोड दे दो यार। Dummy, is it working? I don't think it is working. Which package you are using it from? अच्छा ठीक है, इसका मतलब चलो ठीक है, बताओ। See if it is visible, screen visible. What you are doing is you are creating diamond dummy. You are creating dummy of diamond DF dollar cuts. You want to keep a separator as well here. गलत क्या होगा? गलत कुछ नहीं होगा। It will show you diamond dummy, but you have done this for cut. Now you have to do it for clarity. Now you will do it for color. So it's okay that you tried. Very fantastic to see that you are already inquisitive enough. I'm trying to do something better. Separator, etc. You can explore. I'm just telling you the package is dummies and it contains a function. I'm not taking dummy. The function is dummy.data.frame. And I mention the name of the data frame, that is diamond DF in my case. Here in the chat box, just try this out. अगर डमीज इंस्टॉल नहीं किया था तो इंस्टॉल कर लेना। मीनवाइल जस्ट पे अटेंशन टू माय स्क्रीन। आई हैव डन। Okay, it takes a couple of seconds but does the job. Let's see what has happened. I think the same I wanted to do. जहां कॉलम कट था वो कट कॉलम ओरिजिनल तो गया, बिकॉज उसकी अब जरूरत नहीं है। उसकी जगह पर क्या आ गए? I see 4 or 5 new columns in place of that. Cut fair, good, ideal, premium, very good. You see that? One column for each category. इस रो में आइडियल कट रहा होगा तो आइडियल में 1 है, बाकी सब 0। सेकंड रो में कट प्रीमियम रहा होगा, बाकी सब 0। थर्ड रो में कट गुड रहा होगा, बाकी सब 0 एंड सो ऑन। The good part is it has done the same for color also, and it has done all the same for clarity as well. समझ गए प्रसून? अगर डमी फंक्शन से करूंगा तो एक एक करके मैं कब तक करता रहूंगा? अभी तो 3 कॉलम थे। इफ देयर वर 20 कॉलम्स तो मैं वो एक एक करके डमी फिर डमी फिर लेट्स गो द स्मार्ट वे। नो,
आई पास द डेटा फ्रेम, उस डेटा फ्रेम में वो देख लेगा कि जहाँ भी उसे फैक्टर या कैरेक्टर मिलेगा उसे वो मान लेगा ये कैटेगोरिकल है और सबके डमी बना डालेगा। खत्म, छुट्टी। ये हो गया जी सबसे, ये हो गया है तो बताइए कुछ नया करते हैं। So, okay, I'm not calling it dummy, I'm calling it final data. Actually, it is kind of final data because more or less everything is done so far. यूनिवेरिएट आप देख चुके हैं, बाईवेरिएट आई एम लीविंग अप टू यू। बाईवेरिएट में कुछ खास नहीं है, बाईवेरिएट में सिर्फ आपको ग्राफ बनाने होते हैं, देखना होता है किस डेटा से क्या रिलेशन आ रहा है इसका, सो दैट यू कैन कन्वे योर रिजल्ट ऑल्सो। कुछ चीज़ें आपको आइडिया लग जाता है कि कौन सा वेरिएबल इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। तो सो दैट इफ सम वेरिएबल इज ऑल टुगेदर नॉट इम्पॉर्टेंट तो हम उसे मॉडल में नहीं रखेंगे, कुछ और सोच लेंगे उसका। However, my model tells me the p-value of important variables, तो वो मैं बाद में भी देख सकता हूँ। But yes, I need anyway bivariate graphs to convey my result later, तो कर लेना चाहिए। बाकी डेटा क्लीनिंग हो चुका, वो भी हो गया। रिमेंबर डेटा मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन में हमने क्या किया है, अभी अभी तो किया है मैनिपुलेशन। मेरे को एल्गोरिदम ऐसा यूज करना था विच इज ज्योमेट्री बेस्ड, जो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को डील नहीं करता एज सच। तो हमने डेटा को मैनिपुलेट कर लिया, डेटा क्लीन ही था लेकिन एज सच मेरे काम का नहीं था। रिमेंबर दैट डेफिनेशन ऑफ डेटा मैनिपुलेशन। Now I am almost ready to build a model. Before I build a model, tell me one thing. मेरे पास ये डायमंड डीएफ डेटा सेट है, दिस फाइनल डेटा। मेरे को क्या प्रेडिक्ट करना है, प्राइस। मेरे को ऐसा मॉडल बनाना है। नाउ देयर इज समथिंग एल्स विच अभी तक बात नहीं हुई थी, वेदर यू डिड दैट कार प्राइस और वेदर यू डिड इट। What happens is, say I have available data, मेरे पास बैंक का जैसा देखा था आपने, बैंक के कस्टमर्स का मेरे पास कुछ डेटा अवेलेबल है, राइट। पिछले 5 साल का मेरे पास डेटा अवेलेबल है एंड इन लास्ट 5 years से दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड 50,000 एप्लीकेशन ऑफ लोन। 50,000 लोग उनके पास आए थे लोन की एप्लीकेशन लेकर के और उन्होंने वो लोन दिया है। एंड फाइनली उनको अब ये भी पता है हु डिफॉल्टेड एंड हु डिड नॉट डिफॉल्ट, हु वर डिफॉल्टर्स हु वर नॉन डिफॉल्टर्स। एग्रीड, मानते हो? यहाँ तक बात क्लियर? ये अवेलेबल डेटा है। नाउ देयर इज समथिंग फ्यूचर डेटा, या आई से दैट टेस्ट डेटा। एसेंशियली इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है कि बैंक के पास तो आज फिर 50 एप्लीकेशन आए हैं। टुडे अगेन दे आर रिसीविंग 50 applications, 50 odd people have come down to take loan। और अब मेरे को ये नहीं पता कि ये डिफॉल्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो फ्यूचर में पता चलेगा ना, जब एक्चुअली ये को लोन दे देंगे और तब ये वापस करेंगे या नहीं करेंगे तब पता चलेगा डिफॉल्ट किया कि नहीं किया। सो दिस इज टेस्ट डेटा या फ्यूचर डेटा जिसका रिजल्ट फ्यूचर में पता चलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज द बेस्ट वी कैन डू, व्हाट इज द बेस्ट वी कैन डू। अवेलेबल डेटा से हमने मॉडल बनाया, राइट। अभी जैसे बनाया था, अरे बनाया था, टीवी बजट और सेल्स वाले में बनाया था, कार्स वाले में तुम में से बहुत सारे लोग बना के देख चुके हो।
आपने पूरा अवेलेबल डेटा यूज कर लिया और मॉडल बना दिया, और अब वो मॉडल आपसे कुछ कह रहा है। जैसा कार्स वाले में कह रहा होगा कि इस प्राइस का कार का प्राइस P1 होगा, दूसरी का P2 होगा, तीसरी का P3 होगा, वो कुछ बताने लगा एक क्वेश्चन। भाई लास्ट में इक्वेशन दे देता है मॉडल मेरे को कि बाकी पैरामीटर्स के हिसाब से प्राइस कितना कैलकुलेट होगा, तो तुम वो कैलकुलेट करने लगे हो। किस पे? टेस्ट डेटा पे। और तुमने ये रिजल्ट दे करके अपने क्लाइंट को भेज दी कि ये है मेरा फैसला, जाओ इसके हिसाब से एक्शन ले लो। क्या ये ठीक लग रहा है तरीका? यार मैंने मॉडल बनाया, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, आर स्क्वायर्ड बहुत अच्छी आई है इसकी, आर स्क्वायर्ड इज वेरी गुड, लेकिन ये रिजल्ट इसने ठीक दिए हैं कि नहीं दिए हैं, क्या इसको चेक करने का कोई तरीका है? एक तरीका कि हाँ, इस मॉडल के हिसाब से फैसला ले लेते हैं। भाई 2-4 महीने चला के देखते हैं कि इसके रिजल्ट के हिसाब से ही आगे प्रिडिक्शन जो थे, फ्यूचर में पता चल जाएगा ना कि इसके प्रिडिक्शन ठीक थे कि नहीं थे। अगर फ्यूचर में वैसा ही हो रहा है जैसा ये कह रहा था, तो ठीक है। और फ्यूचर में अगर कुछ उल्ट सुलट हो गया, हमारे मॉडल ने कुछ और प्रिडिक्शन दिया था, फ्यूचर में कुछ और ही हो रहा है, तो ठीक है, घाटा झेलेंगे 4-6 महीना, और क्या करें। 4-6 महीने में पता चल ही जाएगा कि मॉडल ठीक बता रहा था कि गलत बता रहा था। अगर ठीक बता रहा था तो चलता रहेगा, गलत बता रहा था तो कुछ और करना पड़ेगा। हाँ, वैलिडेशन। भाई एफिशिएंसी ऑफ मॉडल, इसका इवैल्यूएशन, मॉडल इवैल्यूएशन के हाउ इज मॉडल परफॉर्मिंग, या मॉडल वैलिडेशन, हाउ क्लोज इज दिस टू एक्चुअल डेटा, इसका कोई तो पैरामीटर होना चाहिए ना, किसी तरह तो इसको वैलिडेट करोगे। तो एक तरीका तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मॉडल से प्रेडिक्शन देना हमने स्टार्ट किया, कुछ समय तक इसके प्रेडिक्शंस देखते रहे, एंड इन नॉट वेरी डिस्टेंट फ्यूचर ये पता चल ही जाएगा कि इसके प्रेडिक्शन ठीक थे या नहीं थे। बहुत अच्छी बात है, कोई डाउन साइड है इस बात का, इस तरीके का? डमी नहीं लिखोगे रिक्ता, पैकेज नेम इज डमीज, फंक्शन नेम इज डमी डॉट डेटा डॉट फ्रेम। और डमी के बाद ब्रैकेट लगा रखा है, डमी डॉट डेटा डॉट फ्रेम, ये कंप्लीट फंक्शन का नाम है। डमी ब्रैकेट लगाने का मतलब है फंक्शन डमी है, उसके अंदर कुछ हो रहा है। हम 2 महीने हुए जा रहे हैं मुझसे पढ़ते हुए, तुम्हें ऐसे मत करो यार। हाँ जी, मैं कुछ कह रहा था। तो एक तरीका तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, कोई बेहतर तरीका इससे? वैसे इस तरीका का डाउन साइड क्या है? किसी ने बोला ओवर फिटिंग। हाउ कम ओवर फिटिंग? मॉडल तो फिट हो गया जैसा भी होना था। ओवर फिटिंग अभी कहाँ से आ गया? ओवर फिटिंग में तो कोई बात ही नहीं किया। ओवर फिटिंग इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर। नो, नोबडी। एग्जैक्टली, फाइनली। क्यों नहीं दिखते हैं ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें? सपोज मेरा मॉडल कुछ कह रहा था, उसने दिया ये प्रिडिक्शन, उसने कहा प्रिडिक्शन इज P1, फ्यूचर में हो गया प्रिडिक्शन, फ्यूचर में एक्चुअली हो गया T1, एंड इफ दे आर वे 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 टू डिस्टेंट, मेरे मॉडल ने कुछ और ही बताया था, इधर भी मेरे मॉडल ने कुछ और ही बताया था, बहुत दूर एक्चुअल से, एक्चुअली कुछ और ही हो गया, बिल्कुल ही बहुत दूर। इट विल रिजल्ट इन लॉस, एक्चुअली इन प्रैक्टिस इन बिजनेस, इट इज बिजनेस लॉस।
फ्रॉम आवर एग्जांपल, अगर मैं किसी तरह मैं जस्ट जेल कर रहा हूँ इसको, मेरा मॉडल अभी ठीक है, आप लोग प्राइस प्राइस की बात कर रहे हैं, मैं जस्ट जेल करके बता रहा हूँ। ये जो 50 एप्लीकेशन आई थी, एक मेरे मॉडल ने बताया ये भी डिफ़ॉल्ट करेगा, ये डिफ़ॉल्ट करेगा और ये डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। ठीक है? एक्चुअली क्या हुआ, इसने डिफ़ॉल्ट नहीं किया, इसने भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया और इसने डिफ़ॉल्ट कर दी। ये मेरे प्रेडिक्शन थे, ये एक्चुअल होने वाला था, मेरे मॉडल ने नाश कर दिया। कैसे? ये बेचारा नॉन डिफ़ॉल्ट करने वाला था, ये सारे पैसे टाइम से दे देता बैंक को, इंटरेस्ट भी देता। मेरे मॉडल ने बोला नहीं डिफ़ॉल्ट करेगा, भगा दो इसे, तुमने भगा दिया। जो अर्निंग हो सकती थी, नहीं ली। ये डिफ़ॉल्ट करने वाला था, इसका डेटा बता रहा था कि डिफ़ॉल्ट करेगा। मेरा मॉडल नहीं पकड़ पाया, मेरे मॉडल ने कहा नहीं डिफ़ॉल्ट करेगा, दो इसको लोन, भाग के दो। इसने पैसे उठाए, तुमने लोन दे दिया, इसने पैसे उठाए भाग गया। बोथ आर लॉस, वन इज डायरेक्ट लॉस, दिस इज डायरेक्ट हिट, सीधे पैसे ले गए, फरार। दिस इज इनडायरेक्ट हिट, इनडायरेक्ट हिट इन द सेंस ये दिख नहीं रहा लेकिन लॉस है ये भी। कैसे, बता सकते हो? इनकम का लॉस, लॉस है। यस, हाँ, इससे इनकम हो सकती थी जो नहीं ली, तो डायरेक्टली दिख नहीं रहा क्योंकि हो सकती थी, अभी हुई नहीं है। बट तुमने भगा दिया इसको, तो वो इनकम लॉस्ट कर ली जो हो सकती थी। लेकिन अब यार ये कुछ समय के लिए तो झेलना पड़ेगा ऐसा। अगर मेरा मॉडल गलत प्रिडिक्शन दे रहा है तो चलो अगर गलत भी दे रहा है, कुछ समय बाद पता चल जाएगा। ऐसे ही तो पता चल सकता है या और भी कोई तरीका है? लॉस होगा, कुछ समय के लिए लॉस होगा। कोई और तरीका? हम्म। तो एक चीज बता रहा हूँ, जरा देखते रहे ना, बताना ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये जो अवेलेबल डेटा था, जो हिस्टोरिक डेटा है, एग्जिस्टिंग डेटा है, इसी डेटा को अगर मैं स्प्लिट कर लूँ, एक डेटा को मैं कह रहा हूँ ट्रेन एंड सेकंड डेटा को मैं कह रहा हूँ वैलिडेशन। टेस्ट एंड वैलिडेशन, टेस्ट डेटा तो ये है ना यार जो फ्यूचर में है। टेस्ट डेटा तो वो है जिसमें पता ही नहीं मुझे क्या होगा, उस पर तो प्रेडिक्शन करके मैं बताऊंगा। Everybody with me? Can you pay attention for another 5 minutes? I know I have missed your attention span, but are you here now? Yes, no, maybe. बोरिंग हो गया है, ओवरवेलमिंग हो गया है, सर के ऊपर से जा रहा है। क्विक क्विक क्विक, जल्दी जल्दी देखना है मेरे को। नो 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 आ रहे हैं तो ठीक है, अगर यस आया दो चार, मैं कुछ और सोचूंगा फिर।
ओके शुभम, फाइन शंकर, प्रसून फाइन, सुमित शुड आई, ओके दैट्स परफेक्टली फाइन। प्रॉब्लम क्या था, मेरे पास एक अवेलेबल डेटा है, अगर मैंने सारे डेटा से मैंने मॉडल बना दिया और टेस्ट पे दे दिया प्रेडिक्शन, तो मेरे पास अब कोई तरीका नहीं है कि अपने प्रेडिक्शन को वैलिडेट कर सकूं। आई हैव ओनली वन वे दैट आई कैन वेट एंड वॉच फॉर नियर फ्यूचर। जब ये 50 एप्लीकेंट्स फ्यूचर में या तो डिफ़ॉल्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तब पता चलेगा कि मेरे मॉडल ने प्रेडिक्शन ठीक दिया था या नहीं दिया था। मैं चाह रहा हूँ, अब मेरे मॉडल ने अगर प्रेडिक्शन ठीक दिया था बहुत अच्छी बात है, अगर उसने उल्टे-सुल्टे प्रेडिक्शन दिए थे, आई एम गोइंग टू मेक लॉस इन दीज़ 50 एप्लीकेशंस। आई डोंट वांट दैट। आई वांट टू वैलिडेट माय मॉडल बिफोरहैंड। उसका तरीका सोच रहा हूँ। तो उसका तरीका मैंने क्या सोचा है, ये जो अवेलेबल था डेटा, जिसमें मुझे पता है कि किसने डिफ़ॉल्ट किया था, किसने नहीं किया था। मुझे एप्लीकेशन भी पता है, वेरियस प्रेडिक्टर्स भी पता है, और टारगेट कॉलम में क्या आ रहा था, डिफ़ॉल्ट करेगा कि नहीं करेगा, मेरे को अब वो भी पता है। इसी डेटा को मैंने क्या किया, आई हैव डिवाइडेड दिस डेटा इनटू 2 डेटा सेट्स, वन इज़ ट्रेन, वन इज़ वैलिडेट। और अब मैं क्या करूँगा, ट्रेन डेटा सेट तो मॉडल ट्रेनिंग में काम आ गया। इससे तो मैंने मॉडल बना लिया ट्रेन डेटा सेट से, वैसे ही जैसे बनाते हो एलएम फंक्शन। और नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, नाउ थिंक अबाउट इट। मेरे मॉडल को तो नहीं पता ना कि ये वैलिडेट डेटा सेट, इसमें मेरे को टारगेट वेरिएबल है कि नहीं है। भाई मॉडल बनाते समय मैंने उसे सिर्फ ट्रेन डेटा दिखाया है, वैलिडेट डेटा मैंने पहले ही अलग निकाल लिया था। तो मेरे मॉडल को तो नहीं पता कि इस डेटा सेट में, वैलिडेट डेटा सेट में मेरे को ये टारगेट कॉलम ऑलरेडी गिवन है। करेक्ट। तो ट्रेन डेटा सेट से जो मॉडल बन के आया है, मैं वैलिडेशन का टारगेट कॉलम छुपा करके बाकी डेटा पे इस मॉडल से प्रेडिक्शन निकाल लूँ, अपने मॉडल का प्रेडिक्शन निकाल लूँ। सही बात है। एंड ओके, एक्चुअल टारगेट कॉलम तो मुझे पता है ना इस डेटा में, मॉडल को नहीं पता। तो मेरे पास अब मॉडल का प्रेडिक्शन भी है कि मेरा मॉडल क्या प्रेडिक्शन देगा, मेरे पास एक्चुअल टारगेट कॉलम भी है, एक्चुअली भी पता है मेरे को कि क्या हुआ, और मेरे मॉडल मॉडल ने जो प्रेडिक्शन दिए हैं वो तो दिए ही हैं। आई विल चेक देम विस अ विस। पता चल जाएगा मेरा मॉडल प्रेडिक्शन देने में टारगेट के एक्चुअल रिजल्ट के कितना क्लोज है। इफ इट इज क्लोज इनफ, आई विल से इट इज गुड टू गो। ये करेंगे कैसा, हैंड्स ऑन अभी समझेंगे उसको, हैंड्स ऑन इफ टाइम अलाउज वी विल डू इट, अदरवाइज वी विल डू इट टुमारो। बट फंडा समझ आ रहा है, फंडामेंटल क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों ये कहानी कह रहे हैं। एवरीबॉडी, नारी शक्ति नॉट रिस्पॉन्डिंग टुडे। लग रहा है बाउंसर हो रहा है आज, ओवरफ्लो होने लगा है। Since there is no question coming, I am assuming it is going fine. Sanjay, you're processing. What is what are you processing? दिखाता हूँ, देखो देखो, आई विल शो यू, आई विल जस्ट शो यू, दैट विल डू जस्ट बेटर। देखो, दिस इज डायमंड डीएफ, इट इज सम 53,000 rows, राइट, सम 53,000 rows। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसमें से एक तो बनाऊंगा मैं ट्रेन डेटा सेट, वो क्या होगा, डायमंड डीएफ का
रो नंबर 1 से लेकर के से 40,000 से, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये कैसे सोच रहा हूँ वो बाद में बताऊँ, ठीक है। तो ये तो बन गया ट्रेन डेटा सेट। नाउ आई एम कॉलिंग समथिंग वैलिडेशन डेटा सेट। द वेरिएबल, तो ट्रेन एंड वेल दीज आर जस्ट वेरिएबल नेम्स, ये कुछ भी रख सकते हो, आई एम जस्ट कीपिंग इंट्यूटिव नेम। इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, नॉट डायमंड डीएफ, इनफैक्ट फाइनल डेटा, हम डमी बना चुके थे ना। अरे यार, ट्रेन डेटा सेट में तो गई 40,000 रोज, वैलिडेशन डेटा में जाएं कौन सी रोज जो बच गई हैं। अरे यही तो बच, यही तो कहना चाहता हूँ, जो बच गई हैं कौन सी बच गई हैं, 1 से लेके 40,000 तक, माइनस, रिमेंबर माइनस, यहाँ पर कह रहा हूँ 1 से लेके 40,000 तक, यहाँ पे कह रहा हूँ माइनस, यानी 1 से लेकर के 40,000 को छोड़ के बाकी, माइनस का मतलब यही तो था। यहाँ तक ठीक ठाक काम हो चला। एनवायरनमेंट में देखो, दो अलग अलग डेटा सेट बन गए, ट्रेन और वैलिडेशन। यहाँ तक ठीक। लेट्स क्रिएट लीनियर रिग्रेशन मॉडल नंबर 1। रुक जाओ, इसका दिखा देता हूँ, कहीं कंफ्यूजन हो रहा हो। ठीक है, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं, यहाँ तक बात सही है। Shubham is saying something, Rikta is saying yes. Rikta, is this yes for me or somebody else? Let's worry about one thing at a time, ठीक है, पहले देख लो इसको। अब मेरे को मॉडल बनाना था, आई नो प्राइस, प्राइस, अच्छा पी स्मॉल, पी शुड बी स्मॉल, टिल्डा डॉट, यानी बाकी सारे, बहुत अच्छी बात है, एंड डेटा इज इक्वल टू, हाँ जी, डेटा इज इक्वल टू व्हाट, नॉट फाइनल डेटा, नॉट डायमंड डीएफ, डेटा इज इक्वल टू विच वन, करेक्ट, समझ गए। यस, I will not use entire data, I will use only this train data, only these 40,000 rows, rest I have saved for validating. Summary of linear regression model number 1, summary check करते हैं, and what do we say, हम क्या देख रहे हैं, कुछ variables are very very important, some variables are not that important, blank, some variables are dot, dot means between 5% and 10%, तो by thumb rule 5% से ज़्यादा होंगे तो हम हटा देते हैं, by thumb rule at least single star कोई भी वेरिएबल होना चाहिए if I wanted to keep in model। तो बहुत सारे वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट, बहुत सारे वेरिएबल्स नॉट इंपॉर्टेंट, but this is the model which has come out and it has come out just good। You see adjusted R squared, it is wow, not bad, in fact it is great। Yeah, 92%, very fantastic।
ठीक है जी। तो फाइनली क्या हुआ है, आप लोगों को ये इक्वेशन मिल गई, दैट प्राइस इज इक्वल टू कैरेट इनटू दिस, कट फेयर इनटू दिस, कट गुड इनटू दिस एवरीथिंग, एंड फाइनली प्लस इंटरसेप्ट व्हाटसोएवर इज इंटरसेप्ट। ठीक है, तो प्राइस कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, आओ देखें। ये था वैलिडेशन डेटा सेट। अगर ये इक्वेशन लिख लूं, ये लिखनी नहीं है, अगर लिख लो दैट कैरेट वैल्यू इनटू दिस, कट फेयर वैल्यू इनटू दिस, कट गुड वैल्यू इनटू दिस, एंड सारी ये वैल्यू तुम लिख लो, इक्वेशन लिख लो। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, रो नंबर 1 क्या एंटर करना है आपको, कैरेट की वैल्यू, कोएफिशिएंट इसका यहाँ से मिल मिल चुका है आपको, इक्वेशन में है। इसकी वैल्यू, कोएफिशिएंट पता है, इसकी वैल्यू, सबकी वैल्यू, कोएफिशिएंट यहाँ से मिल रहे हैं, एंड दैट इज इक्वल टू प्राइस, दैट इज इक्वल टू प्रेडिक्टेड प्राइस। मिल जाएगा ना प्राइस ऐसे, यस और नो। काम बड़ा भारी सा लग रहा है, लेकिन हो तो जाएगा। सही बात है। Shivang, barely participating today. Vasundhara, barely participating today. Getting it, not getting it. Please at least yes or no जो भी है वो बताते रहो। Sumit, Shubham, Prasun, they are doing fantastic. They are just communicating as if they were in class. That's fantastic to see. Sanjana, processing. Siddharth and Rikta, you are moody. अच्छा ठीक है। ठीक है जी, तो एक तो आया प्रिडिक्टेड प्राइस, ये तो पता चला इक्वेशन से। एक्चुअल तुम्हें पता ही है, वैलिडेशन डेटा सेट में एक्चुअली क्या हुआ था, ये जो पहली रो में डायमंड था इसका एक्चुअल प्राइस कितना था, ये तुम्हें पता है। एक प्रिडिक्शन आ गया। ठीक है जी। नाउ इफ यू सी, ऐसे ही सारे डायमंड्स का निकल जाएगा, ऐसे ही करके सारे डायमंड्स का निकल जाएगा। हाँ दोबारा कर सकते हो, दोबारा कोई डिफरेंस थोड़ी आ जाएगा। जब ऐसा ऐसा करके ये सारे डायमंड्स का तुम कैलकुलेट कर लोगे, तो फाइनली आपके पास दो वेक्टर होंगे, एक में होगा प्रेडिक्टेड प्राइस, एक जगह होगा एक्चुअल प्राइस। अगर एक्चुअल प्राइस और प्रेडिक्टेड प्राइस दोनों आसपास ही हैं, अगर दोनों आसपास ही हैं मोर और लेस, तो मान सकते हो कि इसका मतलब प्रिडिक्शन ठीक ठाक हो गया है मॉडल का। एंड रिमेंबर क्रिस्प डीएम में शायद मैंने बताया भी था, क्रिस्प डीएम में लास्ट स्टेजेस पर मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल वैलिडेशन, तो ये वैलिडेट भी हो गया मॉडल आपका, एंड फाइनली वी कॉल मॉडल इज इन प्रोडक्शन नाउ, मॉडल इज डूइंग, model is productive now it is making business decisions। तो अगर ये वैलिडेशन में आ गया है तो नाउ वी पुट द मॉडल इनटू प्रोडक्शन एंड इट ऑन बेसिस ऑफ इट्स प्रेडिक्शंस वी स्टार्ट टेकिंग बिजनेस डिसीजंस। व्हाट इफ समथिंग इज अदर वे अराउंड, समथिंग लाइक
if this is something haywire, it means मॉडल अच्छा नहीं बना है। आर स्क्वायर्ड लग रही होगी देखने में बहुत अच्छी, ये आई है ना भी बहुत अच्छी आर स्क्वायर्ड 0.92%, नॉट 0.90 मतलब या 92% आर स्क्वायर्ड आई है अभी, हमने जो ट्रेन डेटा पे मॉडल बनाया है। लेकिन मुझे क्या पता है रिजल्ट कैसे देगा, वो आप निकालेंगे तो पता चलेगा कैसे देगा। ठीक है जी। I would again say that I am emphasizing way too much on linear regression, but you will see, you will realize that once this settles, I am taking too much time for each and every nitty-gritty concept, even those which are very obvious, but I am emphasizing way too much on them. You will see that in future it becomes just click click. It is just algorithm is changed, and you will see that there is a tweak in algorithm, and all these concepts are already there in place. Nothing else you have to do something. So if these all things are taken care, all other algorithms become just cakewalk. ठीक है, तो आज हमने करके देख लिया, ये कुछ काम हमने करके देख लिए। ट्रेन डेटा, वैलिडेशन डेटा, अवेलेबल डेटा को ही दो जगह स्प्लिट करके, जो अवेलेबल डेटा था उसी को हम स्प्लिट करके एक को ट्रेन बोला, एक को वैलिडेशन बोला। ट्रेन डेटा से मॉडल तैयार किया, ट्रेन किया, वैलिडेशन डेटा पे मॉडल से प्रेडिक्शन निकाल ली। जब मॉडल ने प्रेडिक्शन दे दी, मॉडल को तो नहीं पता ना, उसके लिए तो ये भी ऐसा ही है जैसा फ्यूचर डेटा होगा। इट्स मॉडल, इट्स एल्गोरिथम, इट कैन नॉट चीट। उसने बेचारे ने प्रेडिक्शन बता दी अपने, एंड यू आर कंपेयरिंग देम विद एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस इन वैलिडेशन डेटा सेट, सो यू फाइंड आउट हाउ मॉडल इज परफॉर्म। कल करके देखते हैं ये सारे काम हैंड्स ऑन। ये ट्रेन डेटा निकालना, ये वैलिडेशन निकालना, जैसे मैंने निकाले हैं ये तरीका ठीक नहीं है, किसी ने पिन पॉइंट कर भी दिया था। बता दूंगा कल क्या क्या होता है। ये जो इक्वेशन में रख के आप प्रेडिक्शन निकालोगे, वो कैसे निकालेंगे? नहीं, आप इक्वेशन लिखोगे नहीं कहीं पे। वी हैव वे टू डू दैट। इसको और इसको जब कंपेयर करेंगे तो वो कंपैरिजन कैसे होगा वो भी देखेंगे। Sumit, it entirely depends on you see business problem. Anyway, it takes if a very practical scenario I talk about, it may take 3 to 4 months minimum. Because before going into model, it takes several rounds of meetings with client and stakeholders, and actually being there on the client's premises and understanding what the business problem really is. Again, that is a broad question, Sumit, depending upon the client, depending upon the client's size, depending upon how what is the demand of the client, it varies. I delivered several nitty-gritty projects for the, there are several players in Faridabad, Ballabgarh is an industrial area. Those who are from Delhi NCR, they know. And there are so many manufacturing players who are into manufacturing domain, and they have varying turnover from a few crores to maybe a few hundred crores. तो उनके लिए ठीक है, डिपेंड्स, 2 3 4 लोगों की टीम भी काम करती है। बट व्हेन इट केम डाउन टू Godfrey Phillips, I mentioned that also. I have delivered project for Godfrey Phillips, I have delivered it for TAFE, I have delivered for Fiat. So when these kind of
clients you are dealing, even if their problem is not that giant, you have to create pomp and show. दिखाना पड़ेगा उनको करके कि देखो तुम्हारे यहाँ पे आपकी सेवा में 10-12 लोग लगे हुए हैं, 2 कंसल्टेंट आ रहे हैं सुबह शाम, तो maybe you can call it unnecessary or unethical or whatsoever you want to, but it is the way it is. It has to be done, उनके ईगो का सवाल है. If they feel like that you are not entertaining us properly, no, you don't want to upset such clients. Okay, very fine, guys. I hope much said and done. I'm turning off recording, but if there is any further question, most welcome.